Hello students, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss some multiple choice questions and these questions are taken from the chapter Cell, the fundamental unit of life. So the first question is which one of the following can be made into crystal? इसमें से कौन सा जो है वो crystal में convert किया जा सकता है? The first one is bacterium, second one is amoeba, third one is virus and fourth is sperm. So as you know, the virus is the uh, thing that can be converted into crystal. It can be kept as a non-living material. Okay, so the right answer is virus. Now, second is the chromosomes are made up of the it is asking the composition of chromosomes. So as you know, the chromosomes are made up of DNA. Okay, DNA plus protein. Two main components are there found in the chromosomes, DNA and protein. So the right answer is chromosomes are made up of DNA and protein. Next, question number third, it is asking you that plasmolysis in a plant cell is defined as. प्लांट सेल में जो प्लाज्मोलिसिस होती है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो द ऑप्शंस आर breakdown of plasma membrane in hypertonic medium, shrinkage of cytoplasm in hypertonic medium, shrinkage of nucleoplasm and none of them. सो एज यू नो प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल में होती है एंड इसमें क्या होता है जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है ड्यू टू कीपिंग द सेल इनटू हाइपरटोनिक मीडियम. ओके, हाइपरटोनिक मीडियम क्या होता है? जब भी कोई मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें हम सेल्स को रखें और उस मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन जो हो वो लो हो इन कंपैरिजन टू द इनसाइड द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, तो सेल से जो वाटर होगा वो क्या होगा? इट विल लीव द सेल, इट विल रिमूव फ्रॉम द सेल towards the outside and the cytoplasm of the cell will shrink. Okay, so this is the right answer, shrinkage of cytoplasm in the hypertonic medium. Now next question is question number 4, which of the following are covered by a single membrane? Okay, there are four cell organelles given in the options. Cell organelles दिए हुए mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosomes and plastids. You have to tell the right आंसर एंड आपको बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है उसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन. प्लास्टिड is also a cell membrane cell organelle which is made up of double layer of cell membrane. So the lysosome is the cell organelle which is made up of only सिंगल मेम्ब्रेन एंड सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है. ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. ओके, एंड दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प टू डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर यूनिट्स. एंड लाइसोसोम्स को आप सोसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हो, डाइजेस्टिव सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हो. ओके, so the right answer is lysosome. It is having single membrane. Rest of the options are having double membrane in it in their structure. Kitchen of the cell is किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम. ठीक है, किचन ऑफ द सेल का मतलब सेल के अंदर फूड जो है वो उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो आप जानते हैं कि प्लांट सेल्स are autotrophic. Plants are autotrophic because their cell are having a structure known as chloroplast in which the glucose is formed, the photosynthesis takes place and glucose is formed. That's why the chloroplast is known as the kitchen of the cell. Okay, kitchen of the plant cell, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होती है और उस क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है और उसके एंड में जो है वो फूड ग्लूकोज बनता है. That's why it is called kitchen of the cell. So the right answer is chloroplast. Now the next is cell theory was given by. Cell theory किसने दी थी? You have to find out the right answer from the given option. साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि सेल थ्योरी किसने दी थी. वेरी फेमस सेल थ्योरी which says that all the living organisms are made up of cell. Cell is the functional and fundamental unit of the life. Okay, so and Clayden and Swan, Leeuwenhoek, Hook and Haeckel. So the right answer is Clayden and Swan. Okay, these two scientists
had given the cell theory, which state that all the living organisms are made up of cells. Cell is the structural and functional unit of life. Okay. Now the next question is question number 7. Cell arises from pre-existing cell was stated by. आपको पता है कि सेल थ्योरी में जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये स्टेटमेंट बाद में उसमें जोड़ा गया था। ओके, और ये किसने दिया था? ये दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। ठीक है, साइंटिस्ट नेम इज रुडोल्फ वर्चो। ही कंक्लूडेड दैट ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल बनने के लिए पुरानी सेल्स की ज़रूरत होती है। पुरानी सेल ही क्या होती है? इट डिवाइड्स इनटू न्यू सेल्स। ओके, पुरानी सेल मदर सेल से ही न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी का वेरी फेमस स्टेटमेंट ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक है, इसको किसने बताया था? रुडोल्फ वर्चो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8. द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सुगर्स फ्रॉम सिंपल सुगर। कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो सिंपल सुगर से कॉम्प्लेक्स सुगर बनाता है, सिंपल सुगर को कॉम्प्लेक्स सुगर में कन्वर्ट करता है? ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, प्लास्टिड, गोल्गी apparatus. So you know that Golgi apparatus is the cell organelle which convert the simple sugars into complex sugar. Okay, Golgi apparatus को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है? प्रोटीन एंड बाकी बायोमोलिक्यूल को जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, इट हेल्प विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus, both these cell organelles help in the transport of the molecules within the cell. और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिंपल सुगर से कॉम्प्लेक्स सुगर कैसे कौन सा सेल ऑर्गेनेल बनाता है? तो ये है गोल्गी apparatus. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज। वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है? आप जानते हो ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर हैविंग सेल मेम्ब्रेन इन देयर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, एक पार्टिकल होता है। ठीक है, पार्टिकल होता है आरएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ पार्टिकल। एंड ये ऐसे डंबल शेप का होता है। इसमें एक स्मॉलर यूनिट होती है, एक लार्जर यूनिट होती है। एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, formation of protein. Okay, formation of protein, and that's why it is called as protein factory of the cell. Now the last question, question number 10. The undefined nuclear region of prokaryotes are also known as. आप जानते हैं सेल जो है वो दो तरीके की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। ओके, एंड यूकैरियोटिक क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड विद अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। सो जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज नॉट कंप्लीट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। उसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ओके, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स, they are also called as nucleoid. So in prokaryotic cell, the nuclear region is not defined, it is openly found in the cytoplasm. ओके, जो प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो क्या होता है? वो ओपनली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती है। बट इन यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो पाया जाता है। एंड ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, दे आर ओल्ड टाइप ऑफ सेल्स। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? दे आर द मोर एडवांस टाइप ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल आपको पता है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक जो है जितने भी एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टिक, बैक्टीरिया को आप निकाल दें तो बाकी जितने भी प्लांट एनिमल सेल्स, फंगस, एल्गी एंड protozoa, these are all are made up of eukaryotic cells. Okay, eukaryotic cells are more advanced type of cells and they are found in the advanced living organism. Okay, and prokaryotic cells are the primitive and old kind of cells. They have less
developed feature in it, and that's why they are found in the old kind of organisms. Okay, and they are the cells which are formed for the first time. सबसे पहले यही सेल्स बनी थी, इनसे ही इवोल्यूशन होकर ये न्यू सेल्स बनी थी. ओके,